ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सुकून की राह, नीमा देवी की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुकून क्यों नहीं मिलता?
लाख कोशिशों के बावजूद कभी स्वास्थ्य का संकट तो कभी आर्थिक तंगी हमारे कदमों में बेड़ियां डाल देती है। यही सवाल नीमा देवी जी के भी थे, जो हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं। वो पहले अन्य देवी देवताओं की पूजा करती थीं, बलि चढ़ाती थीं, पर अंदर कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव था। उनकी पित्त की थैली में गंभीर समस्या हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि 18 महीने तक दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तब उनके बहन के बेटे ने संत रामपाल जी महाराज का परिचय कराया। 25 मार्च 2020 को नीमा देवी और उनके पति ने नाम दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। 18 महीने का इलाज महज 9 महीने में पूरा हो गया। उनका नास्तिक बेटा भी अपनी मां के अद्भुत सुधार को देखकर हैरान रह गया। नीमा देवी जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सच्चे गुरु का साथ मिलता है तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बल्कि हमारा विश्वास और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। जब आप सच्ची राह पर चलें तो जीवन में सुकून और खुशहाली खुद ब खुद दस्तक देती है। अब आप नीमा देवी जी की जुबानी सुनिए उनकी यह प्रेरक कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीमा देवी है सर। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से हूँ। माता जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 25 मार्च 2020 को नाम दीक्षा ली। माता जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले हमारे जो उत्तराखंड में जो पूजाएं चलती हैं, बलि पूजा, यही सब करते थे। बाकी जो व्रत, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, यही व्रत करते थे हम लोग। मैं एक नास्तिक जैसे थी। मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता था भगवान पे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ऐसे आई कि 2012 में मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया था। तो पित्त की थैली का ऑपरेशन तो हो गया था, तो उसके बाद मुझे इतनी एसिडिटी, गैस इतने बनने लगे कि बहुत बीमार रहने लगी। खाना वाना नहीं खा पा रही थी ठीक से। तो उसके बाद मेरी दीदी, बड़ी बहन का लड़का, उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उसने हमें फ़ोन करके बताया, मौसी कि आप तो बहुत बीमार ही रहने लगे हो, क्योंकि मेरा वज़न पहले 65 केजी था। तो मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरा 50 केजी में आ गया था वज़न उन दिनों। तो उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। अभी मैं तो नास्तिक ही हूँ, भगवान का नाम जपना है, क्या हर्ज है, मैं नाम ले लेती हूँ। तो हमने वाइफ हस्बैंड दोनों ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। हमने उस टाइम लॉकडाउन की स्थिति थी, तो लॉकडाउन के दौरान हमने ऑनलाइन नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर। पहले मुझे गैस की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, तो उसके बाद जो है मुझे टीबी की प्रॉब्लम भी हो गई थी। फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया टीबी हो गई करके। तो हमने इलाज चलाया था। इलाज के दौरान उन्होंने बोला 18 महीने की दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी। तो मैंने 1 महीने से ही दवा शुरू कर रखी थी। 1 महीना 1.5 महीने के बाद मुझे पीलिया भी हो गया था। तो पीलिया होने के बाद फिर हमने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बताया कि आपको तो पीलिया हो गया। मैं खाना पीना नहीं खा पा रही थी, दवाइयाँ इतनी तेज़ पावर की थी तो ले नहीं पा रही थी। गैस की प्रॉब्लम पहले से ही थी, तो दवाइयाँ लेने में बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके साथ साथ ही फिर पीलिया भी हो गया था। तो पीलिया की दवाइयाँ हमने बताया डॉक्टर साहब को कि पीलिया की दवाइयाँ, उन्होंने बोला पीलिया की ही दवाइयाँ चलाओ अभी, और जो ये दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ हैं ये बंद करनी पड़ेंगी। तो 1 महीना हमने फिर दवाइयाँ बंद कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 महीने में मेरा जो पीलिया था वो नॉर्मल आ गया था। तो नॉर्मल आने के बाद फिर वो दवाइयाँ मेरी शुरू कर दी। टीबी की दवाइयाँ जो थी वो शुरू हो गई थी। तो दवाइयाँ ले नहीं पा रही थी दवाइयाँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी गैस की। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं दवाइयाँ नहीं खा पा रही हूँ। फिर उन्होंने बोला आप हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ दवाइयाँ चेंज होंगी। तो हम उसके बाद फिर हॉस्पिटल में गए। अहमदाबाद हॉस्पिटल में, गुजरात में थे हम लोग उस टाइम में। तो वहाँ जाके हमने दवाइयाँ, वो हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब को दिखाया। तो उन्होंने बोला, देखा तो उन्होंने एक्सरे वेक्सरे देखे, तो उन्होंने बोला ठीक है, दवाइयाँ चेंज तो नहीं होंगी, लेकिन एक दवाइयाँ जो सबसे बड़ी पावर की दवाई थी 800 mg की, वो उन्होंने बंद करा दी।
तो उसके बाद मैंने दवाइयाँ शुरू करी। 2 महीने मैंने अच्छे से दवाइयाँ खाई। फिर हमने उनको बोला कि दवाइयाँ हम खा नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत करो, आपका जो है ये जो 18 महीने का इलाज है ये 9 महीने में ख़त्म हो जाएंगी दवाइयाँ। तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया कि हम ये बहुत परेशानी हो गई थी, एकदम मरने की हालत में आ गई थी, दवाइयाँ खा नहीं पा रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाती थी, जहाँ पे हमने दिया लगाते थे, ज्योति लगाते थे, तो वहाँ पे मैं बोलती थी, हे संत रामपाल जी महाराज, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे ये दवाइयाँ मेरी छुड़ा दो आप। ऐसे करके मैं बोलती थी। मुझे बहुत मुश्किल से वो दवाइयाँ मैं खा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया कर दी, 9 महीने के अंदर में मेरी 18 महीने की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरे गले में, अब वो खांसी के दौरान में मेरा गला बहुत ज़ख्मी हो गया था। ये एलर्जी मेरी बनी रह रही थी। एक तो मैं दवाइयाँ खा नहीं पा रही थी, और फिर मैंने होम्योपैथिक इलाज भी चलाया, उससे भी मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था गले में। तो फिर मैंने बोला, अब हम इतने बड़े गुरु जी के शरण में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, मुझे ये दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, अब मैं छोड़ देती हूँ दवाइयाँ। मैंने उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। अभी मुझे एलर्जी में भी बहुत फ़ायदा है और मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ। सर ये जो मेरी रिपोर्ट है, मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले ये वाली रिपोर्ट है, ये वाली, ये बाएं साइड वाली, और जो दाहिने साइड वाली रिपोर्ट है ये मेरी नाम दीक्षा लेने के बाद 9 महीने दवाइयाँ खाने के बाद, दवाइयाँ जब बंद हो गई थी उसके बाद की ये रिपोर्ट है मेरी। ये एक्सरे है और इसमें एकदम क्लियर है। और इस दौरान डॉक्टर भी हैरान हो गए थे वहाँ पे, ये ऐसे कैसे हुआ। और हमारे बच्चे भी घर में हैरान थे, जो कि वो मानते भी नहीं हैं ये सब, कि मेरा बेटा उधर ही रेलवे में है और वो भी इतना भगवान पे वो विश्वास नहीं करता था। मैंने उसको बोला, देखो संत रामपाल जी की दया से मेरी ये दवाइयाँ 9 महीने में ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने बोला, वो भी बोला हाँ ठीक है, ये सही बात है। और आज भी वो मतलब मन ही मन से मानता है, नाम दीक्षा उसने नहीं ले रखी है। ये रिपोर्ट मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले की है। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ले ली, तो उसके बाद हमने भक्ति करी, तो 9 महीने में सारी दवाइयाँ भी मेरी बंद हो गई। और 9 महीने के बाद की रिपोर्ट मेरी ये है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा ये फेफड़ों का इन्फेक्शन एकदम क्लियर हो गया है। ये हॉस्पिटल में मेरा, अहमदाबाद हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था। हम लोग गुजरात में थे उस टाइम में, वैसे हम उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। और संत रामपाल जी ने इतनी दया कर दी, मेरी 18 महीने की दवाइयाँ 9 महीने में ही क्लियर हो गई। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि आज भी जो भी है उन्हीं की दया से मैं ठीक हूँ। सर, अब जब 18 महीने की दवाइयाँ 9 महीने में ख़त्म हो गई थी तो सभी लोग हैरान थे, तो हमें भी थोड़ा वो हो रहा था कि अभी क्या पता कैसा है। संत रामपाल जी की दया से तो ये अभी मैंने फिर दूसरी बार रिपोर्ट कराई, हल्का फुल्का थोड़ा खांसी वायरल ये जो सीजन का चला था वो हुआ था, तो ये मैंने रिपोर्ट कराई ये बिरलाल हॉस्पिटल में। ये रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई है और मुझे अब कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, फेफड़ों में दिक्कत कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे आर्थिक लाभ भी हुए हैं। जैसे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे पैसे की प्रॉब्लम आजकल तो वही है, पैसे की प्रॉब्लम होती है घर में, तो जब जब ऐसी तकलीफ होती है, परेशानी होती है घर में, तो संत रामपाल जी महाराज कहीं न कहीं से हम पर दया कर देते हैं और उन्हीं की दया से सब घर में ठीक ठाक चला है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर कि माताएं बहनें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज मुझे टीवी पर देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन करती हूँ तहे दिल से कि आप इस जीवन का जो असली रहस्य है, असली मकसद है हमारे ये मनुष्य जीवन का, इसको आप जानिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद पता चल रहा है कि हम मनुष्य जीवन में किस लिए आते हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और सत्य भक्ति वही बताते हैं जो कि मोक्ष का रास्ता है। बाकी हमारे उत्तराखंड में जो है बलि पूजा होती है, बलि पूजा में ही अपना कोई बीमार हो गया तो बलि पूजा होती है, किसी की खुशी शादी हो गई तो बोलते हैं कि शादी बाजी ठीक ठाक से निपट जाए तो मैं पूजा करूँगा, तो बलि पूजा करते हैं। तो ये प्रथा हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चली है
बलि पूजा ये सही साधना नहीं है, और हमें सही साधना और सही मार्ग दिखाया है, मोक्ष मार्ग दिखाया है, जो कि हम 84 लाख योनियों में जो फिरते रहते हैं, इससे हमें मोक्ष दिलाने का रास्ता बताया है। माताजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे जब सत्संग चलता है तो उस टाइम एक नीचे पीली पट्टी चलती रहती है, तो उसमें नंबर आते हैं, बरबाला आश्रम के नंबर हैं, उसमें कांटेक्ट करने से आपको अपने नज़दीकी नामदान केंद्र जो खुले हैं, 500 केंद्र खुले हैं हर शहर में, इनके केंद्र हैं, तो आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। नाम दीक्षा इनकी फ्री मिलती है। धन्यवाद जी। सच्चा है। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज। एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है। अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता है नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि भाई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वह लाई उठा के और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही भगवान शिव के रूप, साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अदम शक्ति है। गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। तो परमात्मा नवजात शिशु ने कहा कि हे महात्मा जी, हे शिव जी, अब भगवान ने कहा नवजात शिशु के रूप धारी बालक, उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्या हो जाएगी। अक्साधु आया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे। और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपको आपका पोषण कर गए थे आत्मा का,
इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला, जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची, इस इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के सिर पे कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए, और पात्र नीचे कर दिया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस बुढ़िया के, उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, यानी वेदों को, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर, तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधु घात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधु घात किए हैं, उस तीन ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है तीन ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो तीन ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सहस 88 सारे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सहस 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वो सुपच का शंख बजा रे, बन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते हैं 33 करोड़ यज्ञ में आए, 87 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता,
12 करोड़ ब्राह्मण, वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रहे, सुदर्शन से शंख बजा रहे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 94 के मंत्र 1 में, 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन का डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवन अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वहीं पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है। धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं। धन है ये काशी नगरी जहाँ से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल।
अपनात्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की। एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी देव दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तुम लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही, तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर, सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाज के आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यह देखना यहाँ पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, प्रथम 9 मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन, हे सोम स्वभाव परमात्मन, ओ सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहाँ पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि इस उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपने आत्मा, देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई, कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, यहां स्पष्ट इसका अर्थ ये बनता है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। उस, इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष अर्थ जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में,
उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परिवर्ष की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से, ये है कबीर सागर। और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो, तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार, महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़ के। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति। तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। चाहते हैं भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओं तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध ही धरो छिपाई, अक्सर उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो भगवान शंकर आए थे और
वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा, हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं, वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, और यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं। गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2,000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं। यहाँ खाक ठीक ठाक है, आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार भैन जी। सत साहिब सर। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰ ਦਾਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2 ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ।
ਸਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਤੀ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਦਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ 24-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਬਰਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲੜਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਲਈ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ 2013 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ कबीर परमात्मा जी हैं उनका चेहरा नज़र आया। तो मैं अखा मीच के मल के उत्थे सोची जावां भी ये की हो रहा। तो मैं अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज नूं आवाज़ लगाई तो मेरे परमात्मा जी चौथे नंबर ते जाके अगे तो फिर मेरे कोल वापस आए। तो मैनू कहन लगे कि हाँ बेटी बताओ, क्योंकि हमारे गुरु जी तो हिंदी बोलते हैं। हाँ बेटी बताओ क्या बात है। तो मैं गुरु जी नूं दस्सिया कि गुरु जी मैनू तो तुहाडे चेहरे ते कबीर साहब जी नज़र आते हैं तो कदे संत रामपाल जी महाराज नज़र आते हैं। तो उन्होंने मैनू कहा भी ये बेटी ये तो तेरी भक्ति की वो है। तो मैंने अपने परमात्मा से कहा गुरु जी मैंने भक्ति कहाँ है अभी तो 1 महीना तो मेरे को भक्ति करते हुए हुआ है। तो फिर महाराज ने बोला कि बेटी ये तो पिछली भक्ति है। तो फिर मैंने बोला गुरु जी नहीं आप मान जाओ, आप ही कबीर साहब हो। तो मेरे परमात्मा ने मेरे पास हंस कर कहा भी बेटी नहीं,
तो मैं तो तेरा गुरु हूँ, कबीर साहब तो तेरे को पिछली भक्ति के कारण दिखा रहे हैं। फिर मैंने आवाज़ लगाते हुए ज़ोर से रोते हुए बोला कि गुरुजी, या तो आप एक रूप में आओ, कभी कबीर साहब, कभी और आप मान भी नहीं रहे हो कि आप कबीर साहब हो। फिर मेरे परमात्मा ने मेरे को ऐसे सिर के ऊपर हाथ रख के और ऐसे किया, मेरे एक मोंडे पे हाथ रखा, एक सिर पे। सर ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਥਾਮ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਟੌਂਟ ਕੱਸਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ 4 ਵਜੇ कि उठ बेटा, जोत लगाओ। तो मैंने चारों तरफ देखा, दिखाई मेरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन ये मेरे को 100% यकीन है कि वो मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज थे। उसके बाद भगत जी, हम तो लालच के लिए जुड़े थे, ऐसे बेवकूफ़ भगत थे हम। हमने क्या मांगा परमात्मा से? हमने तो ये मांगा था कि हमारी कोठी बुकवा दो। हमको नहीं पता था कि ये परमात्मा है। वो तो हमारे को गुरु जी के जेल धाम जाने के बाद ही पता चला, जब हमारे साथ चमत्कार होने लगे। तो पहला चमत्कार मैनू मेरे परमात्मा ने ये दिता कि मेरे हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਛਾਪੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਂਕ ਦਿਓ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੜੀ ਫੇਂਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹ ਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਬਤਾਓ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 40 ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਮਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਉਠੋ, ਡੈਡੀ ਉਠੋ। 2-3 ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝਟਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਡਾਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਧਾਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਧਾਮ ਗਏ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸਰ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਘੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि बेटा तू घबरा ना, मैं इनको अपनी शरण में लेके रहूँगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ, ਘਾਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨੀਚੇ ਲੇਟਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਿਰਫ ਮੋਕਸ਼ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਸ ਸਦਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਮਰ ਸਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ यहाँ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਈ ਸਰ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।